अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज जैनुल इस्लाम, योर एजुकेशन एंड करियर काउंसलर। आज की वीडियो में हम लोगों के साथ बड़े स्टीम्ड गेस्ट मौजूद हैं जो हम लोगों को स्पेसिफिकली सैट के बारे में बताएंगे। नया पैटर्न है, उसके बारे में कैसे अटेम्प्ट करना है और ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग इट। और जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है प्रेप विस्टा। इंशाल्लाह सून वी आर गोइंग टू कंडक्ट फिजिकल क्लासेस इन आवर कैंपस। तो इनसे एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन भी आपका हो जाएगा, साथ ही आपको सैट के बारे में गाइड करेंगे। ओवर टू यू सर। Perfect, perfect. Thank you so much, Zain. Awesome having uh, in this platform. It's a very prestigious platform, a very reputable organization, Jason Model High School. So, a quick introduction about myself. My name is Mohammad Ali Tariq. I'm one of the founders here at Prevista. So, Prevista is an organization that helps students excel in standardized tests and also in the college applications. Okay. Because when you're applying to the university for your undergrad, this is not just a standardized test or your GPA, your high school result. It's the holistic process जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीजें मैटर करती हैं. It's also about personal statement, letter of recommendations, extracurriculars, how to project your extracurriculars, and if there's something missing, oh, the components, you can jiggle around the components. Okay, if your GPA is not really high, then you can get a high SAT score to sort of balance it out. Okay, so we deal here with everything that is related with the college applications and also with the SATs, which is one of the component that's it sounds tricky. There is air around the SATs that it's difficult. It's not difficult, but it's a different kind of a test, and we'll look at the real and high level questions in this session that will help you gauge the difficulty level of the test. We are also, okay. So we, as I mentioned, we not offer only the SATs, but also we offer other standardized tests. Why this is important for anyone? Why this is the concern? Because there is a massive overlapping when it comes to the standardized test. SAT has a massive overlapping with the GRE, and SAT has a massive overlapping with the GMAT. Okay, these GMAT and GRE, they are the test for the graduate schools. SAT is the test for the undergrad. Okay, if GMAT and GRE are the test for the graduate schools, and it means that they are high level tests. SAT is for the undergrad. It means that we can look at the difficult questions from the GMAT and GRE to armor my SAT preparation. Why this is important? Why this is important? Why it should be anybody's concern? The reason is, as you guys know, that SAT has now been shifted to digital realm. Okay, now this is going to be the digital SAT. We have had two administrations. जहाँ पे March SAT was digital and the May SAT was also digital. This is going to be digital throughout now. We don't have the paper-based SATs anymore, though being conducted in America, but America is going to shift to digital SAT from 2024. Okay, SAT going digital. Both of these tests were digital. SAT not only has gone digital, but it has transmogrified into a different kind of a test when it comes to the reading section or the English section of the SATs. Now, this is really important. It has huge ramifications. SAT has gone digital, and in going digital, it has become a little bit more tricky because it is now following an algorithm which is called multi-stage testing, which is also being employed on the GREs. GRE also follow the algorithm which is called multi-stage testing. Now SAT is also going to SAT is also now following multi-stage testing. In multi-stage testing, you have two modules or two sections, section 1 and section 2. The difficulty level of the section 2 or the second section depends on your performance in section 1. This is exactly what happens on the GRE. Okay, if your performance in the first section is awesome, then you are going to get a very difficult second module. And how to prepare for the difficult questions if for the second module. Keep this thing in mind that my performance in my first section or first module was really awesome. You have two modules for English and two modules for maths. In the first module, if I have an awesome performance,
The second module is going to be adaptive and it is going to be difficult. This is called multi-stage testing. Okay, so now this is important even more to prepare for the really high level question. Very high level questions, okay, very high level questions. And we will in this session show you the correspondence between the questions that are asked now in the new SATs and also the questions that are in the GREs. This is one of the most important thing if you are looking at a score which is 1550 kind of a score. And 1550 kind of a score is 1550 kind of a score is indispensable if you are aiming Ivy Leagues. 15 with a 1550 kind of a score, your admission in any local university is guaranteed. Is almost guaranteed. Is sorry almost to cut you off, sir. Actually हमारी थोड़ी सी ना ऑडियंस डाइवर्स है. I would like कि थोड़ा इंग्लिश के साथ आप उर्दू में भी अगर थोड़ा बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट नो Thank you प्रॉब्लम so एट ऑल. much. Thank you so बिल्कुल we appreciate it and we follow the same pattern. हम लोग यही पैटर्न प्रेविस्टा में भी फॉलो करते हैं. अच्छा गाइस, आप इसको अब इस तरह देखो कि जो कि 1550 जो स्कोर है वो इंपॉर्टेंट क्यों है. ओके, अगर आप लोग 1550 को टारगेट नहीं कर रहे, आई कैन गारंटी दैट यू आर नॉट गोइंग टू रीच 1500 एज वेल. 1550 इज अ वेरी सेफ स्कोर अगर आप लोगों का जो कॉलेज एप्लीकेशंस की बाकी कोई चीज लैक कर रही है. जिस तरह आपकी अगर एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं है तो मुझे फिर 1550 क्या शो करता है कि आप एकेडमिक सुपरस्टार हो. आपको टेबल में कुछ लेके आना है जो आपकी एप्लीकेशन को स्टैंड आउट करवा दे. ओके, अगर आप लोगों का परफेक्ट स्कोर आ सकता है 1600 आउट ऑफ 1600 तो वो मैसिवली स्टैंड आउट करवा देते हैं आपको पूल में से. ठीक है, हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा केसेस देखते हैं जहाँ पे लोगों को इनिशियली यकीन नहीं आता कि हम लोग एक बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं या फिर हम लोग आईवी लीग में भी जा सकते हैं. मैं यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि एक स्टूडेंट थी, उन्हें हमें अफगानिस्तान से ज्वाइन किया था जब ये तालिबान की इन्वेजन हुई थी लास्ट ईयर. तो वो इन्वेजन के बाद पाकिस्तान आ गई. उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, मुझे और मेरे पार्टनर बिलाल को, कि मैं पाकिस्तान में किसी को नहीं जानती. शी वाज इन कोयटा. तो मैं कोयटा आ गई हूँ तो मैं लाहौर आ रही हूँ कि मैं आप लोगों के अलावा किसी को नहीं जानती. तो हमने उनको कहा कि आप खैर कोयटा ही नहीं, क्योंकि हमारा भी उस वक्त ज्यादातर ऑनलाइन था, कोविड की भी थोड़ी बहुत सिचुएशन थी और हमारा मैसिवली ऑनलाइन बहुत जबरदस्त था. अच्छा, वो लड़की अफगानिस्तान की थी, उसका जो ड्रीम स्कूल था वो येल था. हम लोगों को अगर आप इंस्टाग्राम में कोई फॉलो करता होगा तो हम लोग उसकी स्टोरीज भी कभी कभी लगाते हैं. तो उसका येल ड्रीम स्कूल था, उसका येल में हो गया था. और जब हम लोग उससे बात करते थे वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट शुरू में थी कि यार मैं कैसे, येल में मेरा ड्रीम स्कूल है लेकिन मैं कैसे जा सकूंगी. ये एक बिल्कुल नॉर्मल है कि अभी आप अपने आप को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे. लेकिन आई कैन टेल यू एवरी पर्सन जो कि जाते हैं इन स्कूल्स में, येल या हार्वर्ड में, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं. ओके, वो और ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं एसएटी की डिफिकल्टी को भी. अगर एसएटी को अगर आप एक सही तरह से लेके चलो, एक बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ, तो एसएटीज हम लोग देखेंगे एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड कि ये बिल्कुल भी मुश्किल टेस्ट नहीं है. ओके, मुश्किल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इसको बिलीव कर लो कि ये एसएटीज बिल्कुल भी मुश्किल टेस्ट नहीं है. ताकि जब आप इसको ये समझ आओगे कि मुश्किल नहीं है तो फिर आपकी प्रेपरेशन जो होगी वो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे होती है एज कंपेयर टू अगर आप इसको देखोगे कि यार ये मुश्किल टेस्ट है. इस चीज को क्लियर करने के लिए कि ये मुश्किल टेस्ट नहीं, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं जो आप लोग प्लीज थोड़ा सा खुद देखना. ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट की पूरी दुनिया में, दैट इज जो बाकी स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी हैं उनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और ये जो इन स्टैंडर्डाइज टेस्ट की पर्सनैलिटी है, ये क्वेश्चन, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, उसको बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करता है. और ये एक माइंडसेट को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो एसएटीज हैं ये डिफिकल्ट हैं या फिर किस तरह के क्वेश्चंस हैं. दिस क्वेश्चन इज इवन मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज एन ऑफिशियल क्वेश्चन दैट इज बाय द पीपल हु मेक दीज टेस्ट. ओके, अब प्लीज ये चीजें थोड़ी सी इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए हम लोग को आपको लगेगा कि जंप करें फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, बट द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. ओके, अब इसको देखो कि ये जो हम लोग अभी क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको अगर आप लोग सॉल्व करो इन द मीनवाइल, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात भी करता रहूंगा कि दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी टिपिकल standardized test, SAT, GRE, GMAT, a very standardized question. Okay, this captures the epitome. Yes, जो एक essence है इस टेस्ट के मैथ्स के क्वेश्चन की, स्पेशली बिकॉज दिस इज अ मैथ्स क्वेश्चन. और इंग्लिश की भी हम लोग बात करेंगे if time permits. If you have P and this is angle Q and this is angle R, this is angle S and this is angle T, and the question is that you have to find the summation of angles P, Q,
R plus S plus angle T. Now the answer choices are, is it going to be 90 or 180 or 270 or 540? ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है एससीटीज और जेआरडी से रिलेटेड, बट ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि ये जो टेस्ट है ये मुश्किल टेस्ट नहीं होता। इस चीज को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये टेस्ट मुश्किल टेस्ट नहीं है। मुश्किल नहीं है इसका क्या मतलब, मैं तो ये क्वेश्चन को नहीं कर सक रहा। मुश्किल नहीं है इसका मतलब ये है कि ये मैथ्स का तो क्वेश्चन है, एससीटी मैथ्स का, लेकिन इसके अंदर जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत इजी हैं। अगर आपको मैथ्स का फोबिया है किसी को कि यार एससीटीज में मैथ्स होती है और मैथ्स में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो मैथ्स है वो बहुत ही इजी मैथ्स है। इवन देन दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। द रीजन इज कि ये इजी कॉन्सेप्ट्स को डिफिकल्ट क्वेश्चन किस तरह बनाते हैं, जो आपकी टीम बनती है, जो टेस्ट बनाती है कॉलेज बोर्ड के अंदर की जो टीम होती है जो क्वेश्चन को क्राफ्ट करती है, उनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बंदे होते हैं उनको कहा जाता है साइकोमेट्रिशियंस। साइकोमेट्रिशियंस आर द पीपल हु आर मास्टरिंग द साइंस ऑफ मेजरमेंट। दे अंडरस्टैंड कि आप चीजों को परसीव कैसे करो। ओके, ये उनको उनके ये मास्टर होते हैं। और जो एफबीआई के डिटेक्टिव्स होते हैं वो भी मास्टर होते हैं कि आप कौन सी जगह पे कौन सी गलती की होगी और वो कौन सी गलती कहाँ पे हुई होगी। ये इस मेजरमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं जो साइकोमेट्रिशियंस होते हैं। और ये जो क्वेश्चन क्राफ्टिंग होती है इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बंदे होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं। इसके अंदर जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन हर हाई स्कूल के बच्चे को आता है कि दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी, देन व्हाट इज द समेशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ओके, ये 180 है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। जो सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा वो ये कि इफ द साइड इज बीइंग एक्सटेंडेड, तो वो जो साइड के मेजरमेंट होता है डी, वो ए प्लस बी के बराबर होता है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर। ओके, सो डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। No, these are the two maths concepts that are being used in this SAT or GRE or GMAT standardized test का जो क्वेश्चन है ये। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हर किसी को आते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये फिर डिफिकल्ट है ना, ये बस एक ट्रिकी क्वेश्चन है। और इन ट्रिकी क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए थॉट प्रोसेस आपने डेवलप करना होता है, जो अभी तक हम लोग करते थे अपनी स्टडीज को, जो कि हाई स्कूल लेवल की स्टडीज थी जहाँ पे हमने ए लेवल्स या एफएससी की, वहां पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस होता है। यहाँ पे थॉट प्रोसेस बहुत इंट्यूटिव है एंड दिस इज अ गुड थिंग। ओके, फॉर इंस्टेंस व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, आई मुझे नहीं समझ आ रहा कि स्टिल ये क्वेश्चन मैंने किसका करना है। आई एनकरेज यू गाइस कि आप लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। मीनवाइल मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ कि ये बहुत टिपिकल सिचुएशन है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की भी। ओके, कि आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। whenever you will face this situation on the test day. Everybody face the situation जहाँ पे मुझे मैथ्स के क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा होता। ओके, आप अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा, जस्ट कीप इट वेरी सिंपल, लाइक दिस इज अ मैथ्स क्वेश्चन एंड दिस इज अ ज्योमेट्री क्वेश्चन। ज्योमेट्री में यू हैव 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री होती है और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। नो, दिस इज अ 2D ज्योमेट्री क्वेश्चन। नो, इन द 2D ज्योमेट्री क्वेश्चन यू हैव टू टाइप्स ऑफ फिगर्स, एक स्टैंडर्डाइज्ड फिगर्स होती हैं और एक अनकन्वेंशनल फिगर्स होती हैं, कन्वेंशनल होती हैं। ओके, कन्वेंशनल ये जो है ये अनकन्वेंशनल फिगर है। कन्वेंशनल फिगर्स कौन सी होती हैं, स्क्वायर्स या फिर ट्रायंगल्स या फिर सर्कल्स। ओके, वो कन्वेंशनल फिगर्स हैं। नो, ये जो अब हर अनकन्वेंशनल फिगर जो है वो इट इज मेड अप ऑफ कन्वेंशनल फिगर्स। और कन्वेंशनल फिगर्स जो है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रायंगल्स होते हैं। ये देखो हम लोगों ने कितना इजी सा स्टार्ट किया कि ये कौन सा क्वेश्चन है और मैं कितना आगे पहुंच गया उसमें। विद इन फ्यू सेकंड्स में पहुंच जाता हूँ। अगर मैं थॉट प्रोसेस अपना लेके आता हूँ ना, यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करें तो ये थोड़ा सा ज्यादा लेगा टाइम, बट ये आप देखो ये कितना जल्दी आप पहुंच गए और आपने बिल्कुल इजी से स्टार्ट किया। आई कैन गारंटी दैट जो भी तक हम लोगों ने बात की ये आपको ऑलरेडी पता है। आई कैन गारंटी। ओके, इवन कि अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं कि यहाँ पे ट्राइंगल्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ट्राइंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होती हैं एससीटीज में। अब ट्राइंगल्स में व्हेनेवर यू फेस दिस सिचुएशन कि यार जो साइड इज बीइंग एक्सटेंडेड एज इज द केस हियर, 95% ऑफ द चांस कि ये जो थ्योरम है ये यूज होगा। 95% ऑफ द चांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एससीटी की मैथ्स की ज्योमेट्री का, कि ये अगर 95% ऑफ द चांस कि ये थ्योरम यूज हो जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मुझे ट्राइंगल्स बड़े मिल रहे हैं और मुझे उनमें एक साइड एक्सटेंड नजर आ रही है। फॉर इंस्टेंस पी आर एंड दिस थिंग, पी आर एंड दिस थिंग। ओके, सो यहाँ पे जो साइड है वो एक्सटेंड हो रही है और यहाँ पे ये वाली साइड एक्सटेंड हो रही है और यहाँ पे जो है वो ये साइड एक्सटेंड हो रही है, क्यू टी, और ये वाला जो ट्राइंगल है साइड्स आर बीइंग एक्सटेंडेड, इट मींस कि दिस इज बीइंग यूज्ड हियर।
अगर मेरे पास यूज है तो मुझे ये वाला डेटा पता है, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखता हूं तो इट इज गोइंग टू बी, दिस एंगल इज गोइंग टू बी P प्लस R। नाउ दिस इज अ मेजर ब्रेक थ्रू। ओके, उसका रीजन ये था कि जब मैंने देखा तो मुझे दो ट्रायंगल्स नजर आए थे, मुझे छोटे ट्रायंगल्स नजर आए थे जो कि एजेस में है, जैसा Q इसका एक पार्ट है और फिर P एक एक ट्रायंगल का पार्ट है और R एक एंगल जो पार्ट है। लुक एट दिस वे कि ये जो छोटे ट्रायंगल्स हैं, ओके, मुझे ये वाले नजर आए थे, फिर मुझे बड़े ट्रायंगल्स नजर आए थे जिनका टू वर्टाइसेस मुझे पता है। आपको अगर ये वाली सिचुएशन हो कि यू हैव टू सिचुएशंस और एक का मुझे डेटा पॉइंट ज्यादा पता है, जैसा बड़े ट्रायंगल्स का मुझे पी आर पता था, तो आप हमेशा वहां से लेके चलोगे आगे जहां पे मुझे डेटा पॉइंट्स आता है। और मैंने जब उसके ऊपर फोकस किया ब्रेड ट्रायंगल के ऊपर, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे तो वो थ्योरम यूज हो रहा है जो हम लोगों ने मेंशन किया। ओके, अब जब मैंने उसके ऊपर थ्योरम यूज कर दिया तो मुझे डेटा पॉइंट मिल गया एक और। वो डेटा पॉइंट किसका है? वो छोटे ट्रायंगल का डेटा पॉइंट है। इसका मतलब ये कि आई कैन यूज द बिगर ट्रायंगल टू प्रोवाइड द डेटा पॉइंट्स ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल्स। अ मेजर ब्रेक थ्रू, मेजर ब्रेक थ्रू। और मैंने कुछ भी मुश्किल था यहाँ पे नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं था। वन स्टेप इज लीडिंग टू अनदर स्टेप। और मुझे क्या था कि बिकॉज ये एससीटीज के थ्रू आउट ये होता है कि वन स्टेप लीड्स टू अनदर स्टेप, तो मुझे जो वन स्टेप है आई कैन कीप इट वेरी सिंपल एंड प्रोग्रेस फ्रॉम देयर, एज इज द केस हियर। नाउ इफ दिस इज ट्रू कि मुझे एक डेटा पॉइंट मिल गया, इसका मतलब ये मुझे इसी ट्राइंगल का, छोटे ट्राइंगल का एक और डेटा पॉइंट भी मिल जाएगा। मैं देखता हूँ कि मुझे मिल सकता है कि नहीं। अगर मैं इसके ऊपर फोकस करूं तो ये क्या है, ये वाला डेटा पॉइंट जो है ये इसके लिए ये वाला ट्राइंगल यूज होता है। और ये जो है अगर मैं ये थ्योरम अप्लाई करता हूं, क्योंकि जहां पे ये सिचुएशन आएगी तो ये वाला थ्योरम लगेगा। सो दिस इज Q प्लस T। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन, व्हाट इज द समेशन ऑफ P P Q Q R, this is R, this is S, this is S, and this is T. So this is internal angles के जो summation है वो 180 होते हैं, so 180 is the answer. This is being used here. Now you have to be 100% honest, even if it ruins my entire presentation, how difficult this question was. Not difficult at all. I can guarantee that the kind of a maths जो आप लोग अपने हाई स्कूल में देख रहे हो, जो आपने ओ लेवल्स में देखी है, वो ज्यादा मुश्किल मैथ्स थी। तो ये तो मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन ये बहुत मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी क्वेश्चन था। तो मुश्किल कहाँ पे था? ये मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी, इसमें एक थॉट प्रोसेस को डेवलप करना होता है। जो एसएटी की जो प्रेपरेशंस हैं वो थॉट प्रोसेस ओरिएंटेड होती है बहुत ज्यादा। ओके, अगर आप इसको थॉट प्रोसेस ओरिएंटेड रखोगे तो आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको एफर्ट उतनी ज्यादा शायद ना करनी पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि एफर्ट मुझे बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट फिर भी करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, लेकिन आप यू आर डूइंग द स्मार्ट वर्क अगर आप थॉट प्रोसेस को डेवलप करोगे। ओके, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दिस इज द टिपिकल क्वेश्चन। ओके, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट, दिस वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट वाज डिफरेंट, या डिफरेंट। थॉट प्रोसेस डेवलप करना इसमें मुश्किल है। थॉट प्रोसेस बहुत इंट्यूटिव थॉट प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बंदा जो कि अच्छा स्कोर लेके जा सकते हैं, वी सी इट रिपीटेडली हियर एट प्रेप कि लोग अपने आप को कभी कभी बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और फिर जब वो प्रोसेस से गुजरते हैं तो उनके गोल्स चेंज हो जाते हैं। वो पहले मिडिल टीयर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे होते हैं यूएस की, और उनको पता चल जाता है यार कि हम लोग तो एक अच्छा एसएटी का स्कोर ले सकते हैं, और फिर वो दूसरी यूनिवर्सिटीज की तरफ अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और वो बहुत सीरियस हो जाते हैं। अब दिस इज इंपॉर्टेंट, देखिए आप लोगों ने देख लिया कि मैथ्स का क्वेश्चन, वी आल्सो ट्राई टू लुक इनटू द इंग्लिश क्वेश्चंस एज वेल। अब सिचुएशन क्या होती है कि सिचुएशन ये है, बिलीव यू मी, आपकी जो कॉलेज की एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपने अप्लाई करना है, फॉर इंस्टेंस अगर आपने लम्स में अप्लाई करना है तो लम्स के लिए भी एसएटी चाहिए। अगर आपने नर्स में अप्लाई करना है, नर्स का अपना टेस्ट भी होता है, लेकिन वो एसएटी के स्कोर्स भी देख लेते हैं अगर आप सबमिट करवाना चाहो। अगर आपने आईबी के लिए अप्लाई करना है तो वो भी एसएटी के स्कोर ले लेते हैं, उनका अपना भी टेस्ट होता है, लेकिन एसएटी के स्कोर भी देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे इसको अब मेरा अगर जीपीए अच्छा है और मुझे बाकी कॉलेज एप्लीकेशन में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं एक एसएटी का स्कोर अच्छा ले सकता हूँ। आई एम रिपीटिंग इट एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग रिडंडेंट, आई विल से डेफिनेटली अगर आप मेहनत करना चाहो तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि हर बंदा कर सकता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप मैथ्स फोबिया है आपको, क्योंकि मैथ्स तो यहाँ पे बहुत इजी मैथ्स थी और एक थॉट प्रोसेस था, और ये थॉट प्रोसेस बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, रॉकेट साइंस क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्डाइज, जिस तरह टीवी स्क्रीन स्टैंडर्डाइज होती है। ओके, ये बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है, और ये किसी भी डेमोग्राफिक रीजन के लोगों को एडवांटेज नहीं देता। यानी कि अगर एक बंदा पाकिस्तान का है तो उसको एडवांटेज नहीं मिल रहा, और एक अमेरिका का बच्चा उसको एडवांटेज मिल रहा है, इस तरह नहीं ये टेस्ट ऑपरेट करते। ओके, ये बहुत ही डेमोग्राफिक न्यूट्रल है, और ये इसलिए बहुत स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, और ये एक यार्ड स्टिक है जिसके मेजर करके जो कॉलेज एडमिशन कमेटीज होती हैं वो आपको गेज करती हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा डेटा पॉइंट है, क्योंकि डिफरेंट हो सकता है। अब एफएससी का बच्चा, इट इज पॉसिबल कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो,
और उसके नंबर ना आए और वो लेवल्स में नंबर लेना शायद आसान हो, वो एक स्टैंडर्ड फिगर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो एक स्टैंडर्ड जियोस्टिक हो जाती है, जिसमें हर किसी को एक मेजर किया जा सकता है। सर और वी आर विद 12 13 मिनट्स, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम लोग पैटर्न और बाकी चीजों की तरफ भी आ जाए। थैंक यू। परफेक्ट परफेक्ट। एसईटी का जो पैटर्न है वो अब चेंज हो गया, एज आई मेंशन कि वो डिजिटल एसईटी हो चुका हुआ है। उसके अंदर थोड़ी सी सिचुएशन ये है कि आपके अंदर आई शो यू द पैटर्न एज वेल, ओके। जो जो पैटर्न है एसईटीज के क्वेश्चंस का, बिकॉज ये ऑफिशियल टेस्ट है, ऑफिशियल एक ऑफिशियल एक वो है। बिला भाई से पूछो ये डिलीट कैसे होते हैं, ये जो हम लोग कर रहे हैं। ओके एक ये प्लीज आप इसको देखो यहाँ पे ना, एक ये हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ला भाई को ये स्क्रीन कैसे डिलीट होती है? यू जस्ट गिव मी अ सेकंड जी, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है मेरी तरफ से, मैं माजर चाहूंगा उसके लिए। जी जी श्योर सर, टेक योर टाइम। ओके ला भाई से पूछिए डिलीट कैसे होती है जो स्क्रीन है। ये जी पैटर्न इस तरह का है कि जब आप टेस्ट में जाके बैठते हैं तो अब ये कंप्यूटर एडेप्टिव हो गया, ओके। वो हम लोग अगर आप उसका फील देखना चाहते हैं कोई भी, तो वो कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट में जा सकते हैं। हम लोगों ने आपके साथ के लिए यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर ली है कि जब आप जाते हैं तो आपको कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको ना इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। वो जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो 33 क्वेश्चंस होते हैं और वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हम लोग अभी स्क्रीन को कर देंगे डिलीट। लेकिन लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, ये इस तरह के क्वेश्चंस का फॉर्मेट है कि जहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपके पास क्वेश्चन होगा और नीचे आपके पास आंसर चॉइसेस होंगे, ओके। ये वाले इनमें 6 डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं इंग्लिश में, जिसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे शो आ रहा होगा, टू गेट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक होता है, ओके। इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने चीज को समझना होता है और जो आ रहा होता है इसके भी प्रोटोकॉल है, बट वी डोंट हैव द टाइम as I mentioned, we just have 10 minutes left. These are the type of questions जहाँ पे जो कि इंग्लिश के क्वेश्चंस है, ओके। इंग्लिश के क्वेश्चंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ग्रामर ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। अब क्योंकि टाइम इज ऑफ एसेंस, तो आप और डिजिटल एसिटीज में आप अब आगे जा सकते हैं और पीछे आ सकते हैं। आई रिकमेंड एवरीवन कि वो इसको खुद एक दफा एक्सपीरियंस करें, जो कि इनकी वेबसाइट में जाके जो एक प्रैक्टिस टेस्ट को डाउनलोड करें और देखें ये इंटरफेस किस तरह ऑपरेट करता है, जो जो रियल इंटरफेस है कि मैं वहां पे आगे भी जा सकता हूँ, मैं पीछे भी जा सकता हूँ। अब ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, वी डोंट हैव द टाइम, वी कैन नॉट डिस्कस इन डिटेल, बट बिकॉज आई कैन मूव अराउंड इन विद इन द सेक्शंस, तो मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले करना है कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं यूनिवर्सिटीज में जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजीज हैं, कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा तो अब ये सिचुएशन होती है कि कुछ क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, सो दिस इज अ ग्राफ क्वेश्चन इज मैसिवली टाइम कंज्यूमिंग। तो जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है उनको किस तरह करने हैं, वो पूरी पेपर टेकिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, जो कि एंटायर सेशन होता है प्रेपिस्टा में, और वो क्योंकि बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। बट दीज आर द पैटर्न क्वेश्चन जहाँ पे कुछ ग्राफ्स भी आ जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ग्राफिक क्वेश्चन नहीं होते। द क्वेश्चन दैट आई शोड यू जो इनिशियल में थे वो ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो ज्यादा आते हैं, नंबर में ज्यादा होते हैं। ओके यू विल हैव 1 or 2 ग्राफ क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसको अटेंड करने की स्ट्रेटजी क्या होती है, ये सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ये इजी होते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इनका एक टाइम होता है जब हम लोग टेस्ट दे रहे होते हैं। यू विल हैव 2 क्वेश्चंस ऑन द टेस्ट डे मैक्सिमम, ओके। ये बाकी कुछ क्वेश्चन है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हो, ये बहुत ग्रामर ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ग्रामर अगर मेरी मास्टरी तक पहुंच जाए, मेरी अगर बहुत अच्छी हो जाए, तो ग्रामर के क्वेश्चन मैं विद इन फ्यू सेकंड्स भी कर लेता हूँ, ओके। अगर मेरी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाए तो ये विद इन फ्यू सेकंड्स ये ग्रामर के क्वेश्चन जो हैं ये हो जाते हैं। दिस इज अ ह्यूज थिंग, क्योंकि अगर आप ग्रामर के क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लो तो फिर बेल आउट आउट कर सकते हो उन क्वेश्चन को जो जरूरत हो, इसे सारे टाइम कंज्यूम करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द मैथ्स मॉड्यूल, तो मैथ्स में बहुत ज्यादा बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अगर हम लोग मैथ्स के थोड़ा सा पेपर फॉर्मेट देख रहे हो, पेपर क्वेश्चन देख लें, बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं मैथ्स में भी। और जब हम लोगों ने मैथ्स का क्वेश्चन इनफेक्ट कर लिए थे, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास 27 क्वेश्चंस होते हैं, और जो आपके पास मुकम्मल टाइम होता है वो कितने इंग्लिश मैथ्स के क्वेश्चंस का, 35 मिनट्स है। 27 क्वेश्चन 35 मिनट्स। और अगेन यहाँ पे भी यही है कि कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं, इनका भी प्रोटोकॉल होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इफ यू कैन नॉट गेट द क्वेश्चन इन फर्स्ट 30 सेकंड्स, स्पेंडिंग 5 मिनट्स ऑन द टेस्ट डे, वो कोई भी फायदा नहीं होता। तो पूरी स्ट्रैटेजीज हैं पेपर अटेम्प्ट करने की भी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कैलकुलेटर परमिटेड है,
आप इसको यूज करते हो, लेकिन वो डिजिटल कैलकुलेटर नहीं होता, आप अपना कैलकुलेटर लेके जाते हो, जिसकी वजह से चीजें अब बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई। ओके, पहले भी होता था कि एसएटीज में कैलकुलेटर वाले सेक्शन होते थे और नॉन कैलकुलेटर वाले होते थे, लेकिन अब आप कैलकुलेटर थ्रू आउट यूज कर सकते हो। ये वाली चीजें जो भी हम लोगों ने देखी थी, दीज आर नॉट न्यू थिंग्स, जो हम लोगों ने हाई स्कूल में भी देखी, लेकिन हम लोगों ने देख लिया कि ये पूछी कैसे जाती है। ओके, सो दिस इज अ पेपर पैटर्न। एनीथिंग एल्स जैन यू वांट मी टू टॉक अबाउट? अच्छा, मैं सर थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि वो जो आप बता रहे थे कि हम सेक्शन में आगे और पीछे जा सकते हैं, और अभी थोड़ी सी मेरे जो इल्म में है चीज कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन उस अगर वो क्वेश्चन ठीक है फिर उसकी डिफिकल्टी लेवल देखते हुए आपको अगला क्वेश्चन वो देता है, कुछ इस जी, तरह का कुछ मैंने नहीं सुना नहीं, था। वो जो आप बात कर रहे हो ना, वो नहीं है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये अच्छा। एसएटीज क्वेश्चन लेवल पे अडेप्टिव नहीं है, ये सेक्शन लेवल पे अडेप्टिव है। यानी कि अगर आपको जो एक सेक्शन मिलते हैं, 2 सेक्शन इंग्लिश के और 2 सेक्शन आपके मैथ्स के, अगर आपका पहला सेक्शन अच्छा हो जाता है ना, तो फिर सेक्शन 2 डिफिकल्ट आएगा। सेक्शन लेवल अडेप्टिव है, ये क्वेश्चन लेवल अडेप्टिव नहीं है। यानी कि ठीक नेक्स्ट है। क्वेश्चन जो डिफिकल्ट, वो आपको एक सेट क्वेश्चन मिल जाते हैं। जो पहला सेक्शन होता है वो मीडियम लेवल डिफिकल्टी का होता है। ओके, तो ठीक जो है। सेकंड सेक्शन है वो डिपेंड करता है कि आपकी आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। जी, दिस इज सेक्शन लेवल अडेप्टिव। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? आई होप कि मैंने ये क्लियर कर दिया है, हाँ जी, जैन। मतलब आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि क्वेश्चंस में आप आगे पीछे जा सकते हैं, बट सेक्शन जो आप पूरा अटेम्प्ट करेंगे उसकी या बेस। सेक्शन में को आप सेक्शन में वापस नहीं आ सकते। अगर आपका सेक्शन एक ब्लॉक है, आप उसमें आगे पीछे जा सकते हो, लेकिन ठीक। आप वो नहीं कर सकते। लेकिन आप ना दूसरे सेक्शंस में जाके वापस पिछले सेक्शन में नहीं आ सकते। दिस इज ठीक सेक्शन हो। इज द और एडिट। जो अगला सेक्शन हमें आएगा वो उस चीज के ऊपर बेस होगा कि हमने पिछला कैसे अटेम्प्ट किया, उसका डिफिकल्ट। बिल्कुल, दिस इज सेक्शन एबल अडेप्टिव। ये सेक्शन एबल अडेप्टिव है। ये पहले होता था जीआरईज में, और ये जो है ना, ये जो है ये जीआरईज में होते थे, और जीआरई और कॉलेज बोर्ड का एक बहुत रिलेशनशिप है आपस में, और ये चीज कॉलेज बोर्ड अब लेके आया है डिजिटल एसेटीज में। ठीक होगा, ठीक होगा। मेरा ख्याल 2-4 मिनट रह गए हैं। मुजम्मिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मुजम्मिल, आप भी कुछ इसके मुझे अंदर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? परफेक्ट परफेक्ट। नहीं, बस ये आई थिंक हम लोगों ने सारी बात कर ली। अगर आपका कोई कोई भी क्वेश्चन है किसी का हो। ठीक है, मेरा ख्याल हमारे पास 2-3 मिनट है, तो कोई और क्वेश्चन हम देख सकें या कोई और ऐसी चीज आपके हवाले से जो बच्चों को पता होनी चाहिए सैट के हवाले से। सेट के हवाले से ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने एक बात की है मैथ्स के क्वेश्चन की। ओके, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे ना डिफरेंट फेजेस होते हैं उसके, यहाँ पे प्रेपरेशन में भी फेजेस होते हैं। अगर आप एसएटीज, जैसे हम लोग यहाँ पे 30+ पास प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं जो कि डिजिटल एसएटीज के हैं। ओके, ठीक है। तो आपकी अगर प्रेपरेशन बहुत जल्दी हो जाती है तो आप प्रैक्टिस टेस्ट को करते हैं, और प्रैक्टिस टेस्ट जो है इट्स अ चांस टू मैस अप इन अ सेफ एनवायरनमेंट एंड नॉट मैसिंग योर रियल एसेटी। ओके, ठीक। मतलब ये अच्छा, बालों वालों का कोशिश हम लोग करते हैं लाइक बच्चों को भी हम लोग प्रमोट करेंगे, वो फर्स्ट ईयर में ही जब एएस में अपने जो है वो तब अटेम्प्ट करें, एक दो सैट चले, उनके एग्जाम नहीं भी अच्छा होता तो उनके पास 2-3 चांसेस होते हैं कि जो बच्चे आके ओके, सेकंड। ये जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें ना, अब सिचुएशन ये है कि बहुत से स्कूल जो है वो सुपर स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हार्वर्ड भी सुपर स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि आपकी 2 अटेम्प्ट थी तो आप दोनों के बेस्ट स्कोर्स भेजे हैं। लेकिन जो सिचुएशन है ना, जो हम लोगों की रिकमेंडेशन होती है, आप इसको 2 टेस्ट से ज्यादा एक्सीड ना करें। आप कोशिश करें कि आपकी जो सेकंड अटेम्प्ट है वो फाइनल अटेम्प्ट हो जाए। उसका मतलब, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स दिए हैं तो फिर आपका स्कोर आना चाहिए। आपने इतनी ज्यादा सिटी के टेस्ट दे दिए हैं तो आपका क्यों नहीं स्कोर आया, वो बड़ा नेगेटिव हो जाता है। अगर आपका आ गया तो वो वाला क्रेडिट नहीं है जो आपका पहली अटेम्प्ट में आ गया, आ जाए। ओके, तो ये ठीक बहुत है। डिफरेंट। मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स का अपने जेहन में रखें, और ये ना रखें कि मेरी जो पहली अटेम्प्ट है मैं वो ट्रायल करके देखता हूँ। पहली अटेम्प्ट में ही अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि 1550 आएगा, 1600 आएगा, तो फिर थोड़ा सा काम आता है। ठीक और है। नॉर्मली नॉर्मली वो पहली टाइम जो लोग ये देखते हैं कि मैं ट्रायल देता हूँ, वो बहुत एक बुरे एक्सपीरियंस हो सकते हैं। ठीक है। सो आपके ख्याल से लाइक 1550 जाने के लिए बच्चे को कितने ऑलमोस्ट टेस्ट प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एक एवरेज कैलिबर का जो बच्चा है? ओके, अब इसमें दिस इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट कि मैं कितने प्रैक्टिस टेस्ट करूं, बट मैं कैसे करूं प्रैक्टिस टेस्ट। यानी कि मैंने एक दफा प्रैक्टिस टेस्ट कर लिया तो मुझे इसको रिव्यू करना है कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पे लैग कर रहा था। वो जो रिव्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो रिव्यू कर लें और वो जस्टिस के साथ करें, तो फिर जितने ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे आप उतनी ज्यादा हो जाएगा। अब होता ये है कि प्रैक्टिस टेस्ट करने के का मकसद ये होता है कि आप देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके वीक एरियाज कहाँ पे हैं, और उनके ऊपर आप काम करके फिर एक प्रैक्टिस टेस्ट देखते हैं, और ये ऊपर जाना चाहिए। अगर आपका ठीक। कंसिस्टेंटली 1580 आ रहा है प्रैक्टिस टेस्ट में, तो वो बहुत अच्छी इंडिकेशन होता है कि आप टेस्ट रेडी हैं।
टेस्ट में जाने के लिए फिर उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं ताकि मुझे टेस्ट एंजाइटी ना हो। मैंने शुरू से अपने आपको किस तरह लेके जाना है, क्योंकि अगर आपको टेस्ट एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो आपको वो शुरू से टैकल करनी है, वो टेस्ट डे में जाके वो बहुत एम्पलीफाइड हो जाती है। ठीक है। तो लाइक अगर एक और चीज मेरी, जैसे लम्स का है, लाइक 1550 तो एक बहुत अच्छा स्कोर है, आपको आईवी लीग्स में ले जाता है। बट लम्स की जो रिक्वायरमेंट है लाइक 1350 या 1400 तक, उनके मैक्सिमम जो टॉप स्कूल्स हैं वो इतना चाहते हैं। तो लाइक आपके ख्याल से इसके लिए कितने मंथ्स की बिफोर बिफोर एंड प्रैक्टिस हमें शुरू कर देनी चाहिए अगर हम सिर्फ लम्स को टारगेट कर रहे हैं, लम्स या Okay, now this is a very important question. I am left with 3 minutes. I probably will spend 2 minutes on this question. श्योर Okay. श्योर श्योर। हाँ, देखें जो लम्स के जो जितने भी स्कूल्स हैं ना, उसमें एसडीएस की सबसे बेस्ट स्कूल है। आपका अगर 1500 प्लस आ जाता है और आपके जो थ्रेशोल्ड है, जो उनकी एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है कि इतने ज्यादा आपके स्कोर हो हाई स्कूल में, 70% जो भी उनकी होती है, वो हम लोग बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी है और अगर आप हमें एससीटी देना है, 1500 आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी। 1500 बहुत अच्छा स्कोर है। स्कूल्स को क्यों स्कोर चाहिए होता है, स्कूल्स ऑब्सेस्ड क्यों होते हैं स्कोर के साथ? क्योंकि स्कूल की अपनी रैंकिंग बहुत सी चीजों के अलावा इस चीज पे डिपेंड कर रही होती है कि जो इनकमिंग क्लास है उसका एवरेज एसएटी स्कोर क्या है। तो अगर आप एक बहुत अच्छा एसएटी का स्कोर लेके आते हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एवरेज ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर अब कितने अरसे की रिक्वायरमेंट है, कितने में अरसे में 1500 50 ले सकता हूँ, अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा आपको समझना होगा। ये बहुत ज्यादा इस पे डिपेंड करता है कि आप प्रेपरेशन कैसे कर रहे हैं। अगर आप लोग इवन के अगर आप प्रेविस्टा से नहीं भी पढ़ते ना, तो मैं आपको ये चीज गारंटी से कहता हूँ कि एक राइट काइंड ऑफ अ हेल्प इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन योर एंटायर एसिड प्रेपरेशन। ऑन कर लो, तुम भी कोई बात कर लो आज। और ये कि जो कि एक सही तरह से मुझे लेके जाना है। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे ना एससीटी जब मैं करता हूँ तो आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, मुझे पता नहीं होता कि मुझे क्या नहीं पता है। मुझे कांस्टेंट इवैल्यूएशन चाहिए होती हैं मुझे। और दूसरा भी ये कि वी कैन नॉट गेट द ग्रास्प ऑफ आवर ओन बेस्ट विजडम। हम लोगों को किसी के साथ करके अगर हम लोग कोई काम करें तो हम लोग अपना जो बेस्ट विजडम है उसके ऊपर ग्रास्प कर लेते हैं। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है और अगर आपको मेंटरिंग एक अच्छी मिल रही है, तो मुझे लगता है कि within 2.5 months you can get a really good score, and given the fact that you are willing to put in that work, अगर इंस्ट्रक्टर्स बहुत ज्यादा हेल्प करने अभी चाहें, अगर आप नहीं हिल रहे, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे अपने एंड पे जो आपसे मुतवक्को है, तो वो कोई भी ना आगे चीज जाएगी। अगर आप मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, मेंटरिंग भी मिल रही है, तो ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन हो जाता है। फिर 2.5 months वो बहुत ज्यादा टाइम होता है, और ज्यादा घसीटना भी नहीं चाहिए उसको, बहुत ज्यादा मुझे ड्रैग नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया और ये सर, चीज वर्दी बिल्कुल। एडवाइस इट वाज। और इट वाज अ ग्रेट सेशन। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने टाइम दिया और बड़ा अच्छा सारा जो है वो पैटर्न और एंड बिल्कुल। ऑल दैट सारी चीजें एक्सप्लेन की, इवन एग्जांपल्स के साथ। uh, है had I been in my intermediate or A levels, I would have opted you as my instructor of SAT, but Perfect. My friend Muzammil is one of the best. Muzammil is test guru. Muzammil is also that's your friend. Muzammil was being a डेफिनेटली। with us. बट मेरा ख्याल उनसे तो मेरी बात ही 4 दफा हुई है इस बारे में, बट आपसे ये पहली इंटरेक्शन थी। और इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट कोलैबोरेशन इन फ्यूचर। और इंशाल्लाह ये वीडियो भी जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी करामत होगी, उनको बड़ा फायदा होगा ये देख के। मैं चाहूंगा कि हम एक सेकंड भी वीडियो किस दिन रिकॉर्ड करें, इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट, उसमें हम थोड़ा और डिटेल में जाके चीजों